স্বাগতম জনাইছো আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বাবে কেইবাটাও ভাল খবৰ দিলে 1 লাখ কোটি টকাৰ এক বিশেষ পেকেজৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি টাইমিটৰ দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াইছো যে কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ আৰু কৃষকলৈ সুখবৰ আহিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৃষি আৰু কৃষকৰ বাবে কৰিছে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অধীনত কৃষকলৈ 1 লাখ কোটি টকাৰ পেকেজ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে কৃষকৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পলৈ ৰেহাইৰ হাৰত ধনৰাশি দিয়া হ'ব ঋণ ৰেহাই হাৰত দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ লগতে 2029 লৈ বৃদ্ধি কৃষি আন্তঃগাঁথনিৰ ম্যাদ 2029 লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কৃষি সা-সঁজুলি আৰু সম্প্ৰতি মধ্যমীয়া আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰকল্পৰ বাবে ঋণ দিয়া হ'ব কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে চলিত বৰ্ষত 10,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৃষি ক্ষেত্ৰত আৰু কৃষকৰ বাবে কৰা হ'ব 1 লাখ কোটি টকাৰ বিশেষ পুঁজিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী 3 বছৰলৈ 30,000 কোটি টকা ব্যয় কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেৱল কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইতিমধ্যে এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে কৃষি গোট আৰু কৃষি উদ্যোগী উৎপাদন গোটৰ ন উদ্যোগীলৈ এই ঋণ দিয়া হ'ব ঋণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে বিভিন্ন বেংক প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব এই ঋণ আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰৰ যি আন্তঃগাঁথনি আছে তাক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে এই ঘোষণা কৰা হৈছে অনলাইন পদ্ধতিৰে নিৰীক্ষণ আৰু পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বিশেষ ঋণ দিয়া হ'ব 1 লাখ কোটি টকাৰ ঋণৰ পুঁজিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে 2 কোটি টকালৈকে ঋণ লোৱা সকলে ভৰিব লাগিব 3% সুদ বিশেষ ৰেহাই দিয়া হৈছে যিসকলকে 2 কোটি লৈকে ঋণ ল'ব তেওঁলোকে 3% সুদ দিব লাগিব আৰু 8 কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত 17 কোটি টকা ইতিমধ্যে জমা দিয়া হৈছে যেটো কৃষক সন্মান নিধিৰ অন্তৰ্গত যি ধন আছিল যি পুঁজি আছিল সেয়া ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু কৰোনাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশৰ অৰ্থনীতিক সুদৃঢ় কৰিবৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি 20 লাখ কোটি টকাৰ আৰ্থিক পেকেজৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল তাৰ অন্তৰ্গত এই 1 লাখ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব কৃষি আৰু কৃষকৰ বাবে বিভিন্ন ঋণৰ কথা কোৱা হৈছে ঋণ দিয়া হ'ব খুব কম হাৰতে সুদতে ঋণ পাব যিসকলে 2 কোটি টকা পৰ্যন্ত ঋণ ল'ব তেওঁলোকে মাত্ৰ 3% সুদ দিব লাগিব তাৰ উপৰিও 8 কোটি কৃষকৰ বাবে কৃষক কল্যাণ নিধিৰ যি আঁচনি আছে তাৰ অধীনত 17 কোটি টকা ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে তাৰ লগতে বিশেষ ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কৃষি ক্ষেত্ৰত আৰু কৃষকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে পোষ্ট কোভিড যি অৰ্থনীতি আছে তাত কৃষি ক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব বুলি বিভিন্ন মহলৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে কৃষকৰ বাবে সুখবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিছে য'ত 1 লাখ কোটি টকাৰ বিশেষ পুঁজি মুকলি কৰা হৈছে বিভিন্ন ঋণ দিয়া হ'ব কম সুদত ঋণ পাব কৃষকে আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে অনাগত 3 বছৰৰ বাবে বহু আঁচনিৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আমাৰ হাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমি এই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है इससे गांवों में बेहतर भंडारण आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए कोई बिचौलिया नहीं कोई कमीशन नहीं
सीधा सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। साथियों, दशकों से ये मांग और मंथन चल रहा था कि गांव में उद्योग क्यों नहीं लगते। जैसे उद्योगों को अपने उत्पाद का दाम तय करने में और उसको देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी रहती है, वैसी सुविधा किसानों को क्यों नहीं मिलती। ये अन्याय किसानों के साथ क्यों हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं होता कि अगर साबुन का उद्योग किसी शहर में लगा है तो उसकी बिक्री सिर्फ उसी शहर में होगी। कि साबुन तो देश के हर कोने में, दुनिया में कहीं पर भी बिक सकता है, लेकिन खेती में अब तक ऐसा नहीं होता था। जहां अनाज पैदा होता है तो किसान को स्थानीय मंडी में जाकर के ही उसको बेचना पड़ता था। इसी तरह ये भी मांग उठती रही कि अगर बाकी उद्योगों में कोई बिचौलिए नहीं है तो फसलों के व्यापार में ये बिचौलिए क्यों होने चाहिए। अगर उद्योगों के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो वैसा ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए भी मिलना चाहिए। साथियों, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले इनाम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इसी तरह एक और नया कानून जो बना है उससे किसान अब उद्योगों से सीधी साझेदारी भी कर सकता है। और मैं बताऊं, भारत के उद्योग जगत का जितना निवेश गांव और किसान में होना चाहिए था वो बहुत यानी नगण्य था, मामूली था, और उसमें हमारे कुछ कानून नियम भी आड़े आते थे। अब देखिए, जैसे आलू का किसान चिप्स बनाने वालों से फल उत्पादक यानी बागवान जूस, मुरब्बा, चटनी या कोई
आयुर्वेदिक पौधे वाले किसान है तो फार्मेसी को, जैसे उत्पाद बनाने वाले जो उद्योग हैं उनके साथ वो पार्टनरशिप कर सकता है। इससे किसान को फसल की बुआई के समय तय दाम मिलेंगे, जिससे उसको कीमतों में होने वाली गिरावट से राहत मिल जाएगी। साथियों, हमारी खेती में पैदावार समस्या नहीं है, बल्कि पैदावार के बाद होने वाली उपज की बर्बादी ये बहुत बड़ी समस्या रही है। इससे किसान को भी नुकसान होता है और देश को भी बहुत नुकसान होता है। इसी से निपटने के लिए एक तरफ कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है और दूसरी तरफ किसानों को सीधी मदद दी जा रही है। अब जैसे आवश्यक वस्तुओं से जुड़ा एक कानून हमारे देश में बना था और कई दशकों पहले बना था, लेकिन वो क्यों बना था? क्योंकि उस समय देश में अन्न की कमी थी, भारी कमी थी, और इसलिए उस कानून की जरूरत थी। लेकिन आज तो अन्न के भंडार इतने भरे पड़े हैं कि इस प्रकार की रोक किसान का भी, अर्थव्यवस्था का भी और कंज्यूमर का भी नुकसान होता है। लेकिन बड़ा हैरानगी है कि यह कानून अभी भी चलता रहा। जब हम दुनिया के दूसरे बड़े अन्न उत्पादक बन चुके हैं, तब इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। गांव में अगर अच्छे गोदाम नहीं बन पाए, कृषि आधारित उद्योगों को अगर प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, तो उसका एक बड़ा कारण ये कानून स्वयं में एक बहुत बड़ा रुकावट था। और इस कानून में यह भी एक दुर्भाग्य रहा कि इस कानून का उपयोग से ज्यादा बाबुओं ने उसका दुरुपयोग किया। इससे देश के व्यापारियों को, निवेशकों को, उनको डराने का काम ज्यादा हुआ। अब इस डर के तंत्र से भी कृषि से जुड़े व्यापार को मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद अब व्यापारी, कारोबारी गांवों में स्टोरेज बनाने में और दूसरी व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए आगे आ सकते हैं। साथियों, आज जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है, इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओ उनको वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है।